So last class we have talked about what is the objective of file handling, then what does this file handling mean, and all these things. What is open function, what is close function, when it has to be called, isn't it? That thing we have discussed, and what we have to do within open and close, that thing also we have discussed. That is the process thing, isn't it? So how to write inside a file, how to read from the file. Okay, so these things will be talking in the subsequent classes. We have discussed then what is the meaning of file handling, and how exactly the things are happening, as I told you. What is input stream, what is output stream, what is stream, I told, isn't it? So what is stream? Stream means it's nothing but the sequence of byte, isn't it? एक बाइट का सीक्वेंस को हम क्या बोलेंगे? स्ट्रीम. तो फाइल में क्या रहता है? डाटा रहता है. डाटा किस तरह रहता है अपने फाइल में? दीज आर स्टोर्ड इन शेप ऑफ जीरोज एंड वंस, है ना? तो वो क्या होता है जब बाइट बाय बाइट आपका एक्सेस होता है, देन दैट इज कॉल्ड योर स्ट्रीम. एंड आज आई टोल्ड यू अबाउट द व्हाट इज दैट इनपुट स्ट्रीम एंड आउटपुट स्ट्रीम, है ना? ये जो जस्ट लुक एट दिस पिक्चर. तो व्हाट इज इनपुट स्ट्रीम? जब हम एक्सटर्नल फाइल जो कि आपका सेकेंडरी स्टोरेज में रहता है, ओके, जो एक्सटर्नल फाइल जो आपका सेकेंडरी स्टोरेज में रहता है, वहाँ से लेके हम जब आपका पाइथन प्रोग्राम के ऊपर उसका वेरिएबल स्टोर करते हैं. आर यू गेटिंग इट? इस पाइथन प्रोग्राम में जो जो वेरिएबल रहेगा, और ये कहाँ रहेगा? रैम में रहेगा, है ना? विल बी देयर इनसाइड रैम. तो रैम में रहेगा ये आपका पाइथन प्रोग्राम. जब इस एक्सटर्नल हार्ड डिस्क से जो फाइल है, उस फाइल को हम रैम में लेके आते हैं, तो वो उसका वेरिएबल कहाँ स्टोर होते हैं? पाइथन प्रोग्राम में जो वेरिएबल होते हैं, है ना? तो ये इसको हम क्या बोलते हैं? इनपुट स्ट्रीम, इनपुट स्ट्रीम. बट what is that method is called? This method is called load. Okay, load मतलब क्या? देखो इधर लिखा है load. Load means is nothing but read from file. Okay, and similarly जब हम आपके रैम में जो प्रोग्राम रहेगा उसका जो कुछ वेरिएबल रहेंगे, उस वेरिएबल को हम कहाँ स्टोर करेंगे? आपके फाइल में स्टोर करेंगे. देन दैट विल बी कॉल्ड आज राइट टू फाइल, और दैट इज कॉल्ड सेव. ओके, एंड वो किस तरह होता है? दैट इज यूजिंग द आउटपुट स्ट्रीम. ठीक है, तो ये मैं बताया था लास्ट क्लास में. इन दिस क्लास विल बी टॉकिंग समथिंग एल्स. विल बी टॉकिंग इन डिटेल अबाउट ऑल दिस थिंग्स. So let's start. So as I told you, what is the basic file operation? I told you what is that. First, it has to be, file must be opened, isn't it? How you can open the file? Using open function. So that will be coming next. Then we have to perform the operation. The operations can be anything. Okay, so this is the important part. Okay, इस तरह हम operation perform करेंगे. And finally, after everything will be over, you have to close the file using close command or close function. Okay, so why what is this close function means? Why we need to close the file? तो मैं ये क्या बताया था? जब ओपन करेंगे और कुछ भी फाइल ऑपरेशन करेंगे, okay, whatever the file operation will be doing, or whatever the processing will be doing on the file, that will not be reflected unless you close the file. So this is most important part. If in exam, if you are not writing this close function, then you may lose one 0.5 mark from 2 or 3 mark assigned to your question. Okay, so important, also the importance of closing a file is also there. Okay, so next, as I told you, next let's discuss each one of them. Okay, so today we'll be going to talk about what are the different types of file. ठीक है, तो मैंने इसके बारे में भी थोड़ा सा बताया था आपको. So what I told you, what are the different two types of file? First one is text file, isn't it? The first one is text file. So what is a text file? Text file क्या है? जो आपके टेक्स्ट फॉर्मेट में रहता है.
ठीक है. Text format means what? It should be either in ASCII format. Okay. So it would be either in ASCII format or it would be in Unicode format. Okay. तो वो ASCII फॉर्मेट या यूनिकोड फॉर्मेट में जो रहेगा वो आपका टेक्स्ट फाइल होता है. सो व्हाट इज ASCII? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ASCII? वी हैव स्टडीड इन 11th क्लास. इट इज American Standard Code for Information Interchange, isn't it? So what is the number of bytes that are assigned for ASCII? It is ASCII is even ASCII is two types, isn't it? ASCII 7 and ASCII 8, I guess. Okay, or we call it as extended ASCII 8. तो ASCII 7 मतलब क्या? 7 बिट का रहता है. ASCII 8 मतलब क्या? 8 बिट का रहता है. एंड व्हाट इज द 7 बिट में हम कितने मैक्सिमम कैरेक्टर्स वी कैन मेक? तो हाउ वी कैन नो दैट? आज आई टोल्ड यू 7 बिट मतलब क्या होगा? पहला बिट, दूसरा, 3, 4, 5, 6 एंड 7, इजंट इट? और मैंने क्या बताया था? ईच ऑफ द cells, so what you call them? Cells. Okay, each of these things are called cells. ये क्या होगा? either 0 होगा या फिर 1 होगा. सिमिलरली ये either 0 होगा या 1 होगा, 0 होगा 1 होगा, 0 होगा 1 होगा. तो इस तरह. तो ये कितने वे में हम फिल कर सकते हैं? इट वुड बी फिल्ड इन 2 ways. ये कितने वे में फिल हो सकता है? 2 वे में. ये भी 2 वे में फिल होगा. ओके. तो इसीलिए मैं ASCII 7 में मैक्सिमम कैरेक्टर कितना होंगे? तो ये 2 वे, ये 2 वे, तो ये 2 वे इज 2 वे. तो हियर कम्स द कॉन्सेप्ट ऑफ परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन व्हिच यू हैव स्टडीड इन क्लास 11th और 12th. आई डोंट नो, बट ये कितने तरह से कॉम्बिनेशन हो सकता है. तो इसीलिए हम क्या करेंगे? इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो ये क्या आएगा? 2 to the power 7. So it will be having maximum 2 to the power 7 what? Elements. And we know that each binary number or each number should start with 0. तो ये ASCII 7 से क्या होगा? 0 to 127. क्यों? क्योंकि 2 to the power 7 क्या है? 128. ठीक है. 128 मतलब क्या? वो 0 से लेके 127 तक अपना मतलब उसका ASCII का वैल्यू रहेंगे. ओके, दीज आर द डेसिमल नंबर्स. ओके, इसको हम बाइनरी में इस तरह 0000 इस तरह कुछ लिख सकते हैं. ओके, बट दे आर एक्चुअली स्टोर्ड इन बाइनरी. बट जैसे कि हम क्या जानते हैं? स्मॉल a का ASCII वैल्यू कितना है? 97, इजंट इट? सिमिलरली कैपिटल A का ASCII वैल्यू कितना है? आई थिंक 65 और समथिंग. ओके. तो ये आपका क्या है? ये बाइनरी, ये आपका डेसिमल है. इसको जब बाइनरी कन्वर्ट करेंगे तो कुछ इस तरह 001 इस तरह कुछ रहेगा. ओके. देन व्हाट इज ASCII 8? ASCII 8 में क्या रहता है आपका? ASCII 8 में आपका ये सारे कैरेक्टर के अलावा और बहुत सारे स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे कि एक्सक्लेमेशन मार्क, क्वेश्चन मार्क एंड सम स्टार सिंबल्स में भी, और सम स्पेस, न्यू लाइन कैरेक्टर. ये सब बहुत सारे अलग कैरेक्टर्स आते हैं ASCII फॉर्मेट में. तो ये क्या है? दीज आर ऑल यू नो what you call that? These are included in your text file. Okay. But what is binary file then? बाइनरी फाइल क्या होता है? टेक्स्ट फाइल को छोड़ के बाकी सारे फाइल आपका बाइनरी फाइल होता है. फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने बताया था आपको लास्ट क्लास, I have told you what are binary file, like any audio file, any video file, any image or any text document like Word, Excel, PowerPoint or PDF files, executable files. All these are what? They are your binary files. Okay. So let me just tell you quickly what is the difference between both of them. Okay.
टेक्स्ट फाइल। टेक्स्ट फाइल में क्या होता है, ये आपका ASCII फॉर्मेट में लिखा जाता है, ठीक है। और इसमें क्या होगा, नो ASCII फॉर्मेट। So this is very important because it comes for 2 to 3 marks in CBSE एग्जाम। तो ये पहला डिफरेंस है, ये ASCII फॉर्मेट में रहता है, ये आपका उसमें कोई मतलब जैसे आपका फाइल होता है उस तरह, मतलब जैसे कि मैं क्या एग्जांपल बताता हूँ आपको। तो यू सी दिस नंबर, ये आपका क्या है, अगर इसको हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, ये क्या है, 0th पोजीशन, और ये 1 2 3 4 5 6, ये 6 पोजीशन। तो 2 to the power 6 is what, it is 64, isn't it? 64, and what is 2 to the power 0 1 1 into 1 कितना है, ये आपका 1, तो 60 पर प्लस 1 कितना है, 65। 65 क्या है, दिस इज इन ASCII फॉर्मेट। जब अगर टेक्स्ट में आप उसको मतलब टेक्स्ट मोड में खोलोगे फाइल को, तो क्या ये शो करेगा, इट विल नॉट शो योर 65 और दिस थिंग, इट विल शो स्मॉल ए, सॉरी कैपिटल ए, ठीक है। क्यों ये इस कैपिटल ए शो करेगा, बिकॉज ये वाला नंबर इंटरनल ट्रांसलेशन हो जाएगा टेक्स्ट में, क्योंकि ये ASCII फॉर्मेट में शो करेगा। बट इसमें क्या है, कोई ASCII फॉर्मेट नहीं है, इट शुड बी शोन आज इट इज। इसका मतलब द सेम थिंग विल बी शोन, जैसे 0 1 0 0 0 0 0 1, तो उस तरह ही वो रहेगा। बट इस मतलब ASCII है, इसीलिए वो क्या होगा, कैपिटल ए बन जाएगा। तो इसमें क्या होता है, इंटरनल ट्रांसलेशन टेक्स प्लेस, ओके, ट्रांसलेशन, ओके, इसमें नो ट्रांसलेशन। फॉर एग्जाम्पल अनदर थिंग, सपोज आपका इस ASCII में आपका /n बोल के कुछ रहेगा, सपोज हेलो, ओके, हेलो देन /n वर्ल्ड, ओके, इस तरह कुछ रहेगा। तो ASCII टेक्स्ट फाइल में क्या होगा, हेलो, उसके बाद हेलो पहले प्रिंट होगा, उसके बाद /n होगा, /n मतलब क्या, दिस विल बी गोइंग टू न्यू लाइन, ओके, न्यू लाइन में चला जाएगा, और फिर वर्ल्ड प्रिंट होगा। बट इन केस ऑफ दिस नॉन ASCII, सॉरी नॉन टेक्स्ट, और वी कैन कॉल इट बाइनरी फाइल, ये आपका मतलब ASCII में क्या होता है, जैसे हेलो /n वर्ल्ड बोल के ASCII आपका टेक्स्ट फाइल में रहता है। जब उसको हम रीड करेंगे तो क्या होगा, वो ट्रांसलेट हो जाएगा। तो क्या होगा, हेलो पहले होगा, फिर /n मतलब क्या, इट विल बी ट्रांसलेट टू ए न्यू लाइन। तो हेलो पहले प्रिंट होगा, उसके बाद न्यू लाइन में जाकर वर्ल्ड प्रिंट होगा। बट इन केस ऑफ बाइनरी फाइल, दिस थिंग विल बी प्रिंटेड आज इट इज। तो हेलो /n वर्ल्ड एक ही लाइन में प्रिंट होगा, बिकॉज देयर विल बी नो इंटरनल ट्रांसलेशन। वो /n को वो समझ नहीं पाएगा कि क्या है वो, ठीक है, वो /n को समझ नहीं पाएगा क्या है वो। और एक बात होता है ASCII में, क्या होता है, जैसे मैंने क्या बताया था, ये आपका ए होगा तो इस तरह कुछ रहेगा आपका टेक्स्ट, मतलब टेक्स्ट फाइल में, ओके। बट बाइनरी फाइल में देयर इज अ चांस दैट द ऑर्डर ऑफ दिस बीट्स में डिस्टर्ब, मतलब क्या, इसका ऑर्डर भी चेंज हो सकता है आपका बाइनरी फाइल में। दैट्स वाई देयर आर सम स्पेसिफिक एप्लीकेशन टू रीड फ्रॉम बाइनरी फाइल। जैसे कि अगर एक MP3 को रीड करना है, आप नॉर्मल टेक्स्ट एडिटर में MP3 यू कैनॉट रीड, इजंट इट। जैसे कि MP3 मतलब कुछ टेक्स्ट फाइल है, उस टेक्स्ट फाइल में आप जो भी है दैट कैन बी रीड यूजिंग योर टेक्स्ट एडिटर, लाइक नोटपैड, वर्डपैड, इजंट इट, है ना। बट टू रीड दिस फाइल दे आर हैविंग सम स्पेसिफिक एप्लीकेशंस, ओके, लाइक MP3 रीड करने के लिए हमको एक MP3 प्लेयर चाहिए, वीडियो रीड करने के लिए VLC चाहिए, इमेज देखने के लिए यू नीड ए इमेज
or MS Paint or some image application, isn't it? So that is the difference between ASCII and text file and your binary file. So the next thing, let me just read it out. So just I think you have got some idea about it. Let's talk, let's read these things, okay? So a text file is a sequence of line, and line is the sequence of characters, and this file is saved in a permanent storage device. Although in Python default character coding is ASCII, but by using constant U, this can be converted into Unicode. Okay. In the text file, each line terminates with a special character which is in end of line. Remember this thing. End of line. Okay. टेक्स्ट फाइल में एक स्पेशल कैरेक्टर रहता है जो जिसको हम क्या बोलते हैं, एंड ऑफ लाइन बोलते हैं, और इट इज जनरली योर स्लैश एन कैरेक्टर. ठीक है. इसीलिए हम टेक्स्ट फाइल में अभी नेक्स्ट टाइम हम टेक्स्ट फाइल यूज करेंगे तो देखेंगे कुछ भी लिखा हुआ, सो ऐसा कुछ लिखा है, दिस इज द फर्स्ट लाइन एंड देयर विल बी वन स्लैश एन कैरेक्टर एंड आफ्टर दैट समथिंग देन स्लैश एन कैरेक्टर. ठीक है, इस तरह कुछ लिखा है. ठीक है, मतलब दिस इज आई एम टॉकिंग इन सीक्वेंस ऑफ बाइट फॉर्म. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आई हैव नो आइडिया, बिकॉज देखो एक फाइल रहता है, इस फाइल में क्या होता है, इस तरह एक सीक्वेंस ऑफ पूरा बाइट रहता है. बट स्लैश एन कब कब रहता है, जब आपका ओके लेट मी टेल यू. सपोज ये आपका टेक्स्ट फाइल है. ओके, पहले लिखा है हेलो, देन वर्ल्ड न्यू, देन ये आपका हेलो, देन ये नया लाइन में वर्ल्ड, देन मतलब इंडिया, इस तरह लिखा है. और एक लाइन में ये पहला लाइन है, ये दूसरा लाइन है, ये तीसरा लाइन है. ये आपका जब नोटपैड में खोलते हैं, फाइल इज शोन इन दिस वे. ओके, this text file is shown in this way. In first line it is hello, in second line it is world, and in third line it is India. Okay, but when inside your memory, how it is being stored, just it would be stored in this way. तो पहले इस तरह hello लिखेगा, फिर स्लैश एंड न्यू लाइन कैरेक्टर, क्योंकि हेलो के बाद न्यू लाइन में जाके वर्ड लिखा है, फिर इसमें वर्ड लिखेगा, उसके बाद न्यू लाइन कैरेक्टर होगा, फिर क्या होगा, इंडिया लिखेगा. ओके, आर यू गेटिंग इट? उसके बाद आपका फाइल खत्म हो गया. ठीक है, तो मैं क्या बताया था, इन टेक्स्ट फाइल ईच लाइन टर्मिनेट्स विथ ए स्पेशल कैरेक्टर व्हिच इज एंड ऑफ लाइन, एंड एंड ऑफ लाइन जनरली आपका स्लैश एन रहता है. दीज आर ह्यूमन रीडेबल फॉर्म एंड दीज कैन बी क्रिएटेड यूजिंग एनी टेक्स्ट एडिटर. मैं बताया था वर्डपैड एंड नोटपैड के थ्रू. Okay, next talk about the next thing. The next type of file type is binary file. So what is a binary file? Binary files are used to store binary data such as images, videos, audios, etc. Generally numbers are stored in binary files. In binary file there is no delimiter or end of end delimiter टू एंड ए लाइन. तो डेलीमीटर मतलब क्या, जो मैं आपको ये बताया था, एंड ऑफ लाइन डेलीमीटर रहता है, EOL. ठीक है, तो EOL क्या रहता है अपना टेक्स्ट फाइल में, न्यू लाइन रहता है, बट इसमें कोई न्यू लाइन नहीं रहता है, देयर इज नो डेलीमीटर टू एंड ए लाइन. ओके, सिंस they are directly in the form of binary, hence there is no need to translate them. See this, ट्रांसलेशन नहीं होता, जो मैं बोला इंटरनल ट्रांसलेशन टेक्स प्लेस इन टेक्स्ट फाइल एंड देयर इज नो ट्रांसलेशन. ठीक है, और इसको एग्जांपल कैसे दिखाया था, स्लैश एन लेके, है ना. अगर टेक्स्ट फाइल में स्लैश एन होगा तो क्या होगा, वो न्यू लाइन में चला जाएगा, बट बाइनरी फाइल विल बी शोन इज आर्बिट्री. ओके, दैट्स व्हाई दीज फाइल्स आर इजी एंड फास्ट वर्किंग. ठीक है, फास्ट वर्किंग क्यों है,
फास्ट वर्किंग बिकॉज देयर इज नो इंटरनल ट्रांसलेशन. तो ट्रांसलेशन जब करेगा प्रोसेसर विल बी स्लो, isn't it? Just imagine it will be a very big file, some 10,000 lines of lines are there, and when that has to be displayed on your screen, then it will be in text mode. It should be translated fast, then only the things will be shown. But in binary file what will happen, that will be there will be no translation for anything. तो वो क्या होगा, as it is show करेगा आपको. That's why they are fast. Okay, so this is the basic difference between text file and binary file. Okay, so this is again the same thing only, just go through it. Just it is in point wise format. So text file and binary file. Okay, so it is bits, bits represents characters, it represents custom data. Custom data मतलब जो डाटा है वैसे ही रिप्रेजेंट होगा. Less prone to get corrupt as change reflected as soon as made and can be undone. Okay? ये करप्ट होने का बहुत कम चांस है. कैन इजीली गेट करप्ट ऑन इवन सिंगल बिट चेंज. अगर सिंगल बिट भी चेंज होगा तो देन दैट विल बी टोटली एवरीथिंग विल बी करप्टेड. ओके, एंड इट इज स्टोर्ड इन प्लेन टेक्स्ट इन अ फाइल. कैन स्टोर इन डिफरेंट टाइप्स यूजिंग like different types of data like audio, text, image, what is that, PPT, everything. Okay, then widely used file format and can be opened in text editor. तो इसके लिए स्पेशल एप्लीकेशंस डेवलप किया जाता है, जैसे कि मैं बताया था ना. ऑडियो के लिए हम MP3 करते हैं, मतलब MP3 प्लेयर्स यूज करते हैं. वीडियो के लिए सम मीडिया प्लेयर यूज, isn't it? Then mostly TXT and RTF are used to use as extension to text file and can have application defined extension. जैसे कि application defined extension मतलब क्या, ऑडियो के लिए MP3 है ना, वीडियो के लिए क्या है MKV और MPEG, सिमिलरली इमेज के लिए JPEG और PNG, isn't it? तो दीज आर सम फॉर्मेट. और इसमें और एक पॉइंट ऐड कर सकते हो, इंटरनल ट्रांसलेशन टेक्स प्लेस. इधर इंटरनल ट्रांसलेशन होता नहीं है. और क्या है, टेक्स्ट फाइल देयर इज एंड ऑफ फाइल डेलिमिटर, एंड ऑफ लाइन. ओके, एंड ऑफ लाइन, नॉट एंड ऑफ फाइल, एंड ऑफ लाइन, EOL, isn't it? as I told in previous slide, EOL डेलिमिटर होता है जो कि आपका /n होता है, बट इसमें EOL बोल के कुछ नहीं होता. ठीक है, देयर इज नो EOL बोल के कुछ नहीं होता. ओके, सो आई थिंक द डिफरेंस माइट हैव बीन क्लियर्ड. लेट्स गो टू नेक्स्ट स्लाइड. So now we'll be talking about how we can open and close a file. This thing we have already told like in previous classes. Like last class I only told you how we can open a file. So this is hell lot of text. ये मैं शायद पहले क्लास में आपको बताया था. जैसे मैंने क्या बताया था, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ फाइल है ना. तो हम फाइल क्यों ज़रूरत होता है मैं बताया था, टू स्टोर सम डाटा परमानेंटली, बिकॉज इन रैम whenever the programs programs memory erased, then at the same time your program data also got erased, isn't it? But using file you can store your program data permanently, and whenever you require you can access them, है ना. So that is the use of your opening file handling. The next thing, how we can access how we can work on files. तो पहला चीज क्या होता है, आपको ओपन करना पड़ेगा. ओके, सो देयर इज ए फंक्शन, ओपन फंक्शन. उस फंक्शन के यूज करके आपको फाइल ओपन करना पड़ेगा. उसके बाद आपको सारे जो भी प्रोसेस करना होगा. प्रोसेसिंग मीन्स व्हाट, you can read the file, you can write onto the file, you can append onto the file, and you can do whatever you like you can read line by line, you can read character by character, you can read you can search some content inside the file, whether that word is present or not, how many lines are there or not. Okay, how many lines are there, how many spaces are there, how many A are there, how many small a, capital A are there. So this is the processing. तो पहले आपको ओपन करना पड़ेगा using open function. After that you have to process that file. Once you process that file,
then you have to invariably close the file using the close function. Are you getting it? क्यों close करना पड़ेगा आपको? मतलब you know what do you call that? क्यों close करना पड़ेगा आपको? Because of the fact that if you are not closing the file, whatever the operation you might have performed on the file, that may not be reflecting unless you close the file. अगर आप क्लोज नहीं करोगे तो वॉट एवर द ऑपरेशंस यू माइट हैव परफॉर्म्ड ऑन द फाइल दैट विल नॉट बी रिफ्लेक्टिंग ऑन योर यू नो दैट व्हाट यू कॉल दैट ऑन योर फाइल, जो कि आपका सेकेंडरी स्टोरेज में है. क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम क्या करते हैं जब मतलब फाइल ओपन करते हैं, इसका मतलब क्या, आपका हार्ड डिस्क से उस फाइल का एक कॉपी आता है कहाँ, आपका मेन मेमोरी में आता है ना. तो फाइल के मेन मेमोरी में आने के बाद क्या होता है, उस चीज़ को मतलब जब तक आप उसको क्लोज नहीं करोगे उसका सारे डिटेल्स विल नॉट बी रिफ्लेक्टिंग बैक टू योर फाइल दैट इज ओरिजिनली प्रेजेंट इन योर हार्ड डिस्क. ठीक है, तो क्लोजिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो दैट इज द फर्स्ट थिंग. एंड सेकेंड थिंग इज दैट व्हाई यू क्लोज द फाइल, क्योंकि फाइल कंज्यूम सम मेमोरी. ओके, बिकॉज फाइल कंज्यूम सम मेमोरी. क्यों? क्योंकि वो हम उसको जब हार्ड डिस्क में रहता है उसको हम कॉपी करके लेके आते हैं कहाँ, आपका मेन मेमोरी में. तो अगर इस तरह बहुत सारे आपका फाइल फाइल यू हैव ओपन विदाउट क्लोजिंग इट, तो व्हाट विल हैपन, देयर रेफरेंस इज देयर इन योर मेन मेमोरी, दैट्स व्हाई इट विल कंज्यूम सम मेमोरी. तो इस तरह अगर बहुत सारे फाइल ओपन किए हो और क्लोज नहीं किए हो तो क्या होगा, इट विल अननेसेसरी कंज्यूम योर मेन मेमोरी. तो इसीलिए क्लोजिंग ऑफ फाइल इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो दैट्स व्हाट इट हैज़ रिटन इन द प्रीवियस स्लाइड. ओके, इसमें ये सब लिखा गया है. Okay, just read it, and if you have any doubt then you can ask me. Let's talk about what are the different syntax for file handling. तो file handling के लिए मैंने क्या बोला आपको, first we have to open it, isn't it? So let's see what is the syntax for opening a file. तो क्या है syntax? You have to give a file object. तो पहला चीज़ है क्या है, file object. So what is a file object? तो file object क्या होता है? So this is just like a link to the file. Okay, it is just like a link to the file. You can write it. It's just like a link to the file. Okay, and another thing is that इस फाइल ऑब्जेक्ट के सहारे हम उस फाइल को एक्सेस करेंगे. सो इट इज ऑल्सो सिमिलर टू द वेरिएबल विच विल क्रिएट्स. लाइक हम क्या लिखते हैं, ए इक्वल टू कमांड, ऐसे मतलब पाइथन कमांड प्रॉम्प्ट इस तरह 3 ग्रेटर देन सिंबल रहता है, फिर लिखते हैं ए इक्वल टू 10, इस तरह लिखते हैं हम ना. तो इफ यू आर राइटिंग ए इक्वल टू 10 देन व्हाट हैपेंस, मेमोरी में इस तरह कुछ आरे ऑफ वैल्यूज रहता है, जैसे 10 11 इस तरह कुछ कुछ रहता है, और फिर ये लेबल लग जाता है, 10 को ए वाला लेबल लग जाता है. ओके, so this value 10 can be accessed using a, isn't it, that we know previously. So this file object, this is the way we can access the file. Okay, तो फाइल को एक्सेस करने के लिए this is the only way, that is the file object. Okay, एंड ये फाइल ऑब्जेक्ट क्या मतलब देखो, इसमें हम असाइनमेंट हुआ है ना, कौन सा असाइनमेंट हुआ है, ये वाला फंक्शन असाइंड हुआ है किसको, फाइल ऑब्जेक्ट को. तो हम क्या जानते हैं, जब देयर इज समथिंग कॉल्ड ऑपरेटर प्रेसिडेंस, इजंट इट. तो ऑपरेटर प्रेसिडेंस क्या होता है, तो ये वाला पहले फंक्शन काम करेगा, तो ये फंक्शन जब कॉल होगा, सो दिस इज जस्ट ए फंक्शन, इजंट इट, ओपन फंक्शन. तो ओपन फंक्शन क्या है, दिस इज द फंक्शन कॉलिंग, इजंट इट ना, जो हम जैसे मैं बताया था प्रिंट फंक्शन जब होता है, लिखते हो आप, तो प्रिंट फंक्शन क्या है, तो प्रिंट फंक्शन कॉल हो रहा है, बट आर यू बॉदर्ड अबाउट दिस प्रिंट फंक्शन कि वो कहाँ डिफाइन हुआ है, नहीं, क्योंकि इसका डेफिनेशन कहाँ है, as I told you that is present in the standard Python module, है ना. Similarly this open function is present in the standard Python module,
ठीक है, तो उसमें इसलिए उसका डेफिनेशन के लिए बारे में हम बॉदर नहीं होते, बस वी हैव टू नो द सिंटैक्स एंड विल बी यूजिंग दैट। ओके, so what is the syntax for open function? First thing, you have to write the file name, and second thing, it is the mode, access mode, किस तरह access करेंगे। तो file name you have to write, you can write in two ways। okay, you have to give absolute path or relative path। so what are those things will be coming to the next slide or next class, but you have to write the file name here। आफ्टर दैट यू हैव टू राइट द एक्सेस मोड। मतलब क्या एक्सेस मोड, मतलब क्या, हम किस तरह एक्सेस करना चाहेंगे उसको, रीड करना चाहेंगे या राइट करना चाहेंगे, या मतलब अपेंड करना चाहेंगे, या बोथ रीड राइट करेंगे, मतलब पहले रीड करेंगे उसके बाद राइट करेंगे, या पहले राइट करेंगे उसके बाद रीड करेंगे। ठीक है, तो दीज आर सम व्हाट एक्सेस मोड, एंड रिमेंबर द डिफॉल्ट एक्सेस मोड इज रीड। ओके, रीड हो आपका डिफॉल्ट एक्सेस मोड। ठीक है, एंड व्हाट एवर यू विल बी राइटिंग इन दिस फाइल नेम और एक्सेस मोड, दैट हैज टू बी रिटन इन डबल कोट्स अनलेस यू आर यूजिंग ए वेरिएबल। ओके, तो इसको कैसे क्या करते हैं आई विल बी टेलिंग यू, जस्ट टुडे विल बी टॉकिंग अबाउट द सिंटैक्स ओनली, एंड ओनली 2 minutes आर लेफ्ट। ओके, तो फाइल नेम बताया, एक्सेस मोड क्या है बताया, एंड लेट्स गो टू द नेक्स्ट थिंग। तो एक्सेस मोड क्या क्या है, रीड मोड है, देखो रीड मोड जो कि रीड करने के लिए, राइट मोड जो डिपेंड करता है W टू राइट टू द फाइल, एंड अपेंड मोड दैट इज A टू अपेंड। अपेंड मतलब क्या, जैसे में हम लिस्ट में अपेंड करते हैं, है ना, लिस्ट डॉट अपेंड फंक्शन लिखते हैं ना, सिमिलर टू दैट अपेंड मोड में अगर फाइल खोलते हो तो क्या होता है, कर्सर आपका मतलब जो फाइल पॉइंटर दैट points to the end of the file, so that we'll be talking in the next classes। okay, so this is the end of today's class, and just let me tell you something, just wait for 1 minute, I have given you some questions here, just see those questions, and I have shared the link also, and some people have given the responses, but some people have not given the responses, so please you try your best, and some people have really scored very well, and if you have any doubt then you can ask me in later point of time। okay, thank you very much।